मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की, संगठन के अंदर जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल करके आए हैं उन लोगों की, और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की गारंटी की घोषणा लोगों के पसंद के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स सक्षम हैं कि इन गारंटीज को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आगे पूर्ण करें। अभी 3 न्याय की मुख्यतः बात करी है, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय। युवा न्याय को 5 अलग अलग वर्गों के अंदर भरोसे के तौर के ऊपर कहा गया है। भर्ती का भरोसा कि 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग करेंगे, देंगे। एक पब्लिश्ड जॉब कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर बनाया जाएगा और उसी के आधार के ऊपर 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमारी सरकार में आते ही हम लोग देंगे। पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप के लिए एक कानून मनरेगा के तौर के ऊपर बनाया जाएगा। इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। पेपर लीक से मुक्ति, इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। गिग इकोनॉमी को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, जो कि आजकल एकदम से नहीं है, नहीं के बराबर है। कानूनन इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, इस चीज की भी गारंटी। और युवा रोशनी के लिए कांग्रेस 5,000 करोड़ का कॉर्पस बनाएगी ताकि पूरे देश भर में युवाओं का देखभाल किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि यह पहली लिस्ट अच्छी लिस्ट है। आप सब लोगों को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत बधाई। Now this is the list decided by yesterday CEC under the presidency of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. We are discussed the seats of the states Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Delhi and Lakshadweep yesterday. Next CEC meeting is on 11th. Whenever the next seat is going to be decided, we will let you know the names of the candidates. That's what I am telling. Wait for the list. Because of states. No, that I already answered all that questions. Sitting MPs have been given tickets again. So is the Congress focusing on loyalty factor also? Because in BJP many sitting MPs tickets were cut. I don't know why BJP sitting MP's ticket been cut. That is their business. Our position is very clear. We are going on a clear basis of winnability and the loyalty part. सर आसाम को लेके एक क्वेश्चन है। आसाम में देखा गया है कि जो इंडिया अलायंस है वहाँ में टीएमसी और आम आदमी पार्टी ये लोग अभी थोड़ा सा बाहर है, तो क्या सीन हो सकता है यहाँ पे? इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है इन आसाम? We are trying maximum possible way to go with India alliance everywhere. But still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. We are ready to sacrifice anything for that, reducing the BJP seats. But we are expecting the same level of cooperation with other partners also. In some states, we need to move forward. That's what I am telling. Nothing. Delhi very cordial discussion yesterday हो गया. We are searching for the best candidates in Delhi. Our 3 seats, we will provide our best candidates. We are exploring all the possibilities of finding out the best candidates. Only for the that is for the Delhi.
Not individually, individually I don't. I told you, brother, individually I don't want to answer any seats. We are giving tickets on the basis of inability and that much. There was speculation that the top Congress leadership has asked all senior leaders to contest because this is a prestige issue. These elections are a prestige issue. So we find your name also as part of the list, although you are already a Rajya Sabha member. So can you elaborate on Because this is very clear it is. This is the Lok Sabha election which is going to be decided the future of this country. Our target, Congress party is target to win maximum number of seats in this Lok Sabha election to eradicate this fascist government. That is the target, that is the foremost priority. That is the answer. Therefore, we are searching for winning each and every seats of Congress, wherever we can have. That is the priority. No, senior leaders are, in this list, senior leaders are there. Coming list also, senior leaders will be there. Okay. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख रहे थे, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जहां पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 15 जनरल कैटेगरी के, 24 SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मिलाकर। चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता जयदास मानिकपुरी से। जयदास, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 6 लोगों के अभी नामों का ऐलान कर दिया है और इसमें सबसे जो बड़ी चौंकाने वाली बात जो खबर है, हालांकि पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस बड़े नेताओं को जरूर मैदान पर उतारेगी। यहां पर भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है, उनको राजनांदगांव से टिकट दिया गया है। जो कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है उसमें 6 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया जांजगीर चांपा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर राजधानी की बात करें तो लोग विकास उपाध्याय जो पूर्व विधायक रहा हुआ है यहाँ रायपुर पश्चिम से, उनको जो है रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। वहीं महासमुंद की बात की जाए तो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान पर उतारा गया है। इसके अलावा कोरबा से बात की जाए तो जो अभी मौजूदा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत है, उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत को प्रत्याशी बनाया गया है, जो मौजूदा कोरबा के सांसद भी है। इसके अलावा अगर दुर्ग से बात की जाए तो दुर्ग से राजेंद्र साहू को जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा कयास यह भी लगाया जा रहा है कि पूरे 5 और जो बचे लोकसभा सीटें हैं उसके भी नाम की घोषणा की जाएगी, लेकिन उस पर जो है कुछ बड़े नेताओं के नाम फंसे होने के कारण अभी उसको पेंडिंग से रखा गया। लेकिन यह जानकारी मिली कि अगले 1-2 दिन में वह सूची भी जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल जयदास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 दिन पहले बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया था और 5 दिन के बाद अब कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें यहां पर 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है।